Hello everyone, welcome back to my channel. Let's continue our chapter 14 Unity in Diversity from class 6th SS semester 2. Unity in Diversity. Indian culture is one of the ancient culture of the world. People of our country differ from one another in many ways such as attire, food, residence, religion, language, custom, festival, etc. Yet there is emotional unity. Unity is diversity is a unique feature of our country. तो भारतीय संस्कृति दुनिया की संस्कृति में से एक है, यानी प्राचीन संस्कृति में से एक है. हमारे देश के लोग एक दूसरे से काफ़ी तरीकों से अलग है, जैसे कि उनके पोशाक, भोजन, निवास, धर्म, भाषा, रिवाज, त्यौहार आदि. फिर भी एक तरह से भावनात्मक एकता है. विविधता में एकता हमारे देश की एक अनूठी विशेषता है. People of different religions, languages and castes love and honor their country. They have a feeling of sacrifice and cooperation for their nation. It is called national unity. विभिन्न धर्मों, भाषाओं और जातियों के लोग अपने देश से प्यार और सम्मान करते हैं. उनके राष्ट्र के लिए बलिदान और सहयोग की भावना को राष्ट्रीय एकता कहा जाता है. Development in the economic, social, industrial field occurs because of national unity. People maintain peace, security and prosperity in spite of the diversity. तो राष्ट्रीय एकता के कारण ही आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक क्षेत्र में विकास होता है. विविधता होते हुए भी लोग शांति, सुरक्षा और समृद्धि को बनाए रखते हैं. That's why Dr. Radhakrishnan stated that if we want to survive as a nation, we must accept need of national unity. During the freedom movement, our countrymen made the vision of unity possible through the feeling of patriotism and sacrifice. Unity in diversity is a special feature of our country. इसलिए डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था कि यदि हम एक राष्ट्र के रूप में जीवित रहना चाहते हैं तो हमें राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता को स्वीकार करना चाहिए. स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे देशवासियों ने देशभक्ति और बलिदान की भावना के माध्यम से एकता की दृष्टि को संभव बनाया है. विविधता में एकता हमारे देश की एक विशेष विशेषता है. Indian unity is also expressed in our national anthem, which is composed by Rabindranath Tagore. तो describe what does national anthem explain about unity. तो भारतीय एकता हमारे राष्ट्रगान में भी आपने देखा है कि उसके बारे में उसकी व्याख्या की गई है, जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है. Different caste, religion, custom, cultures, language, etc. are integrated in India. Since India has a diverse culture, it has been able to create a variety in culture. India has followed the principle of Vasudhaiva Kutumbakam. The whole world is a family. India's true sense spreads the feeling of religious tolerance and equality in the world. India is a secular country. Unity in diversity is a unique feature of Indian cultures. In our country, we see a combination of various religions, castes, languages and festivals. People of India live a life of coexistence. Indian people have developed and conserved this unique diversity. तो भारत में विभिन्न जातियों, धर्मों, रीति रिवाजों, संस्कृतियों, भाषाओं आदि को एकीकृत किया जाता है. चूँकि भारत में विविध संस्कृति है, इसलिए एक संस्कृति में विविधता पैदा करने में सक्षम है. भारत में वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब पूरी दुनिया एक परिवार है, इस सिद्धांत का भी पालन किया है. भारत सही मायने में दुनिया में धार्मिक सहिष्णुता और समानता की भावना को फैलाता है. भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है. विविधता में एकता भारतीय की एक अनूठी विशेषता है. हमारे देश में हम विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं और त्योहारों के संयोजन को देखते हैं. भारत के लोग सह अस्तित्व का जीवन जीते हैं. भारतीय लोगों ने इस अद्वितीय विविधता का विकास और संरक्षण किया है, यानी वो उसको फैला तो रहे हैं लेकिन उसको बचा के भी रख रहे हैं. नेक्स्ट इज एफर्ट्स फॉर डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी. वेरियस टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज आर सीन इन आवर कंट्री. डिस्क्रिमिनेशन इज सीन ड्यू टू दिस डाइवर्सिटीज. Discrimination on the basis of rich, poor, male, female, literate, illiterate, urban, rural and caste are seen in our country. In the ancient times, social structures was occupation-based वर्ण system. तो हमारे देश में विभिन्न प्रकार की विविधता देखी जाती हैं. इन विविधताओं के कारण भेदभाव देखा जाता है. हमारे देश में अमीर गरीब, पुरुष महिला, साक्षर निरक्षर, शहरी ग्रामीण और जातियों के आधार पर भेदभाव देखा जाता है.
तो प्राचीन समय में सामाजिक संरचना व्यवसाय आधारित वर्ण व्यवस्था थी. Due to this, many groups remained backward socially and economically. Hence, differences based on caste came into existence. Most of the literate people earn more, so their living standard is high. They maintain reputed status in the society. Difference based on literate and illiterate can also be seen. Most of the people in India are living in rural area. Urban people are quite less as compared to rural people. Due to major difference in their living standard, difference have arisen among rural and urban people. तो इसके कारण कई समूह सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े रहे. इसलिए मतभेद के कारण आधार पर जातियां अस्तित्व में आई. अधिकांश साक्षर लोग अधिक कमाते हैं, इसलिए उनका जीवन स्तर ऊंचा है. वे समाज में प्रतिष्ठित दर्जा बनाए रखते हैं. साक्षर और निरक्षर के आधार पर अंतर भी देखा जा सकता है. भारत में अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं. ग्रामीण लोगों की तुलना में शहरी लोग काफ़ी कम हैं. उनके जीवन स्तर में बड़े अंतर के कारण ग्रामीण और शहरी लोगों के बीच मतभेद पैदा हो गए हैं. Since our right to equality is given in our constitution after independence, untouchability is removed. Now the right to equality is granted to everybody, so all the people get equal opportunity, justice and status. RT has given the right to free and compulsory education to children, so everybody has got an opportunity of primary education. Government has enhanced the education and infrastructure facilities like village roads, primary health center, electricity, drinking water, etc. for the community development. Equal opportunities are granted to women according to the constitutional provisions so that their honor and respect can be maintained. चूँकि हमारे संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद अनटचेबिलिटी को हटा दिया गया था. अब समानता का अधिकार सभी को दिया गया है, इसलिए सभी लोगों को समान अवसर न्याय का दर्जा प्राप्त है. आरटी ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया है. अनिवार्य यानी कंपलसरी, इसलिए सभी को प्राथमिक शिक्षा का अवसर मिला है. सरकार ने सामुदायिक विकास के लिए शैक्षणिक और बुनियादी ढांचे जैसे गांव की सड़कें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बिजली, पीने का पानी, इन सब को बढ़ाया है. महिलाओं को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार समान उत्पीड़न की छूट दी गई है ताकि उनके मान सम्मान को बना के रखा जा सके. Because of getting constitutional right, people follow their own religion, speak their own language, celebrate their own festival. Discrimination is decreasing after independence. Some seats are kept reserved for the people of certain caste in the election of Gram Panchayat to Parliament. Same thing is considered in the matter of jobs also. Hostels, scholarships and schemes of financial assistance for the students are implemented so that all can get opportunity for the further development in social, economical, cultural and political field. तो अधिकार प्राप्त करने के कारण लोग अपने स्वयं के धर्म का पालन करते हैं, अपने स्वयं की भाषा बोलते हैं, अपने स्वयं के त्योहारों का जश्न मनाते हैं. स्वतंत्रता के बाद भेदभाव कम हो रहा है. ग्राम पंचायत से संसद तक के चुनाव में कुछ सीटों को कुछ जाति के लोगों के लिए आरक्षित रख दिया जाता है, यानी रिजर्व कर दिया जाता है. नौकरियों के मामले में भी यही बात मानी जाती है. हॉस्टल, स्कॉलरशिप और बच्चों की फाइनेंशियल हेल्प की भी योजनाओं को लागू किया जाता है ताकि सभी को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में आगे के विकास के लिए मौका मिल सके. नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज. Not only in India but also in the world, women play a major role as a resource in national development. Due to biological differences with a social and cultural viewpoint, there is a difference in the upbringing of girls and boys. So we find difference in their development also. Today, majority of women remain engaged in cooking, household chores, and upbringing children. न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में भी महिलाएं राष्ट्रीय विकास में एक संसाधन के रूप में प्रमुख भूमिका निभाती हैं. सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण के साथ जैविक अंतर के कारण अंतर होता है. लड़कियों और लड़कों की परवरिश में भी अंतर होता है, इसलिए हम उनके विकास में भी अंतर पाते हैं. आजकल अधिकांश महिलाएं घर के कामों में और बच्चों को लाने में ही लगी रहती हैं. Women don't have importance to take decisions regarding family matters.
गर्ल्स आर डिप्राइव्ड ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल राइट्स। पारिवारिक मामलों में निर्णय लेने के लिए महिलाओं का महत्व नहीं है। लड़कियां स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आर्थिक अधिकांश अधिकारों से वंचित हैं। Girls are not given equal opportunity in the field of sports, education. They are deprived of moving freely and thinking independently. They are not even treated equally. Girls are victims of child marriages, parda system, dowry system, and other evil customs. Because of low literacy rate, birth of boy is given preference, so girls become victims of female ferticide. Less number of female in various fields show the discrimination between male and female clearly. With the rising level of education, this discrimination is gradually disappearing. तो खेल शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों को समान रूप से अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है। वे स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने और सोचने से वंचित हैं। उनके साथ समान व्यवहार भी नहीं किया जाता है। कम साक्षरता दर के कारण लड़कियों का बाल विवाह, पर्दा व्यवस्था, दहेज प्रथा और अन्य कुरीतियों का शिकार होती हैं। लड़के के जन्म को प्राथमिकता दी जाती है ताकि लड़कियां कन्या भ्रूण हत्या का शिकार हो। विभिन्न क्षेत्रों में महिला की कम संख्या पुरुष और महिला के बीच का भेदभाव को एकदम स्पष्ट रूप से दर्शाती है। शिक्षा के बढ़ते स्तर के साथ ये भेदभाव धीरे धीरे गायब हो रहा है। थिंग्स टू नो, एफर्ट्स टू रिमूव डिफरेंसेस टुवर्ड्स फीमेल, यानी स्त्री के प्रति मतभेदों को दूर करने का प्रयास। नेशनल कमीशन फॉर विमेन वॉज फॉर्म्ड इन 1992। तो महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है 1992 में। नारी अदालत हैव बीन एस्टैब्लिश्ड सो दैट विमेन कैन इजीली गेट जस्टिस। नारी आंदोलन की स्थापना हो गई है ताकि महिलाओं को आसानी से न्याय मिल सके। विमेन वेलफेयर सेंटर्स वर फॉर्म टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ विमेन। महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए महिला कल्याण केंद्रों का गठन किया गया है। सोसाइटी एंड गवर्नमेंट हैव मेड कंबाइंड एफर्ट्स टू इंक्रीज रेशियो ऑफ गर्ल एजुकेशन। तो समाज और सरकार ने बालिका शिक्षा के रेशियो को बढ़ाने के लिए मिलकर प्रयास किए हैं। लॉज हैव बीन फ्रेम टू एंश्योर इक्वल ओनरशिप इन फैमिली प्रॉपर्टी। पारिवारिक संपत्ति में समान स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाए गए हैं। Strict laws have been framed to prohibit child marriages, dowry system and female ferticide. बाल विवाह, दहेज प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कानून बनाए गए हैं। Many programs have been implemented since 1980 in our country to ensure that women receive equal status, education and security. तो हमारे देश में महिलाओं को समान दर्जा, शिक्षा और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए 1980 से कई कार्यक्रम लागू किए गए हैं। तो ये था हमारा चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिता एजुकेशन। बाय बाय।